Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bila Patel. In this module, we will see the fourth part of the chapter number 9, which is how many times of class 3 maths book. Okay, so let's get into the topic, how many in all. So here you can see there are some story examples are given. Okay, let's go through it. Okay, the Almirah has 4 shelves. There are 5 books in each shelf. So how many books are in the Almirah? Here you can see in this picture also, this is Almirah, okay, and the Almirah has 4 shelves, okay, 1, 2, 3 and 4, and there are 5 books in each shelf, okay, हर एक सेल्फ में 5 बुक्स रखी गई है, ओके. सो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी बुक्स ये अलमीरा में रखी गई होंगी, ओके. सो हम क्या करेंगे, देर आर 4 सेल्फ्स, ओके, सो हम लिखेंगे 4 एंड देर आर 5 बुक्स इन ईच सेल्फ, सो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. सो 4 into 5 इज इक्वल टू 20 बुक्स आर इन दी अलमीरा, ओके. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ शर्ट हैज 5 buttons. So how many buttons would 3 shirts have? You can see in this picture also. Here one shirt has 5 buttons, okay. ऐसे 3 शर्ट्स है तो तीनों के कुल मिलाकर कितने बटन्स होंगे. सो हम क्या करेंगे, 3 शर्ट्स है तो 3 into 5, okay, because each shirt has 5 buttons. So 3 into 5 is equal to total 15 buttons would 3 shirts have, okay. The next example is there are 4 fans. Each fan has 3 blades, okay. So what is the total number of blades in all? You can see in this picture here 4 fans are there, okay, and each fan has 3 blades, okay, 1, 2 and 3. So for finding out the total number of blades of 4 fans, we have to multiply 4 with 3, okay, because there are 4 fans and each fan has 3 blades, okay. So 4 into 3 is equal to 12 blades in all, okay. The next example is a box contains 6 apples, okay. So how many apples in all will 7 boxes have? ये पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 7 बॉक्सेस है, ओके, एप्पल के, और हर एक बॉक्स में 6 एप्पल्स है, ओके. सो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 7 बॉक्सेस में कुल मिलाकर कितने एप्पल होंगे. तो हम क्या करेंगे, देयर आर 7 बॉक्सेस, सो हम 7 लिखेंगे एंड 1 बॉक्स कंटेन 6 एप्पल, सो 7 into 6 इज इक्वल टू 42 एप्पल्स will 7 boxes have, okay. The next example is how many corners would 4 triangles have? So we know that one triangle have 3 corners, okay, 1, 2 and 3. So for finding out the corners of 4 triangle, we have to multiply 3 with 4, okay, because 4 इसलिए क्योंकि हमें 4 triangles के corner find out करने हैं, okay, और हमें पता है कि each triangle have 3 corners, okay. So हम करेंगे 3 into 4 is equal to 12 corners would 4 triangles have. Now let's get into the another topic, some multiplication facts, okay. So take our first example, 8 into 3. So 8 into 3 is equal to 24. So we just write 24, okay. The next is 3 into dash is equal to dash. सो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ओके, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो और उस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके. सो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 वैल्यू, ओके, 10. सो इज इक्वल टू 10 into 3 इज इक्वल टू 30, ओके. द नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, ओके. अब आपको यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यू रखनी है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपको यहाँ पे 42 मिलना चाहिए, ओके. सो वी कैन राइट हियर 6 into 7 और 7 into 6 और 14 into 3, ओके. 14 3 जा इज इक्वल टू 42 और वी कैन राइट हियर 42 1 जा, ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 into 6, ओके. द नेक्स्ट इज 5 into dash इज इक्वल टू 40, ओके. यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू लिखो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आप 5 के साथ करते हो तो आपको आंसर 40 मिलना चाहिए. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ओके, बिकॉज 8 5 इज आर 40, ओके. द नेक्स्ट इज डैश इंटू डैश इज इक्वल टू 54. यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यू लिखिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको आंसर 54 मिलना चाहिए. सो वी कैन राइट हियर 9 6 जा और 18 3 जा ऑल्सो, ओके. आप जो लिखना चाहे लिख सकते हो, ओके. हम लिखते हैं 9 6, okay, 9 into 6 is equal to 54,
Okay, you can write here 18 into 3 also. Okay, the next is 5 into dash is equal to 35. Okay, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू लिखो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन आप 5 के साथ करते हो तो आपको आंसर 35 मिलना चाहिए. सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7. ओके, 7 5 इज 35. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन आप 6 के साथ करते हो. सो यू विल गेट आंसर 36. ओके, हमें आंसर 36 मिलना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे. ओके, 6 6 इज इक्वल टू 36. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 10 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश. ओके, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो और उसका मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ करते हो और जो आंसर आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो हम लिख रहे हैं 5 इज इक्वल टू 50. ओके, द नेक्स्ट इज डैश इंटू 9 इज इक्वल टू 36. आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ करने से हमें 36 आंसर मिलना चाहिए. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4. ओके, 4 9 इज इक्वल 4 9 इज 36. ओके, द नेक्स्ट इज डैश इंटू 7 इज इक्वल टू 28. ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन आप 7 के साथ करते हो. सो वी विल गेट 28 आंसर. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4. ओके, 4 7 इज 28. नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक, multiplication table of 1. Okay, here 1 time 1 is, okay, so हम लिख सकते हैं 1 into 1 is equal to 1. Okay, because 1 time 1. Okay, time that means multiplication करना है हमें. Okay, तो हम 1 time 1 कर रहे हैं, so we will get 1. Okay, 2 times 1 is 2 into 1 because here 2 times 1 is equal to 2. Okay, 3 times 1 is 3 into 1. Okay, यहाँ पे डैश है, वहाँ पे आपको फिलअप करना है वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे देखो हम 1 लिखे बिकॉज 3 तो लिखा हुआ है. 3 टाइम्स 1, सो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. 4 टाइम्स 1 इज 4 इंटू 1. ओके, 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4. 5 टाइम्स 1 इज 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5. 6 टाइम्स 1 इज 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6. ओके, 7 टाइम्स 1 इज 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. 8 times 1 is 8 into 1 is equal to 8. आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9 times 1 is 9 into 1 is equal to 9. ओके, 10 times 1 is 10 into 1 is equal to 10. इस तरह से मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1 हमारा रेडी हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. यहाँ पे हम बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे. ओके, सो हियर सम स्टोरी एग्जाम्पल इज गिवन. 2 toffees were given to each student in the class. Okay, if there were 34 students, so how many toffees were given in all? क्लास के हर एक स्टूडेंट को 2 टॉफी दी गई थी. ओके, अगर क्लास में ऐसे टोटल 34 स्टूडेंट्स थे तो हाउ मेनी टॉफीज वेर गिवन इन ऑल, तो टोटल कितनी टॉफी दी गई होगी. तो देखो टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट आर 34. ओके, इफ स्टूडेंट गेट्स 2 टॉफीज. Okay, so total number of toffees given is 34 into 2. So हम 34 into 2 करेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा उतनी टॉफी स्टूडेंट्स को दी गई थी. ओके, क्लास में. तो देखो 34 into 2 is 34 times 2. ओके, 30 times 2 is 60. So the answer is more than 60. ओके, 40 times 2 is 80. ओके, so answer is लेस देन 80 बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है 34. ओके, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो मोर देन 60 होगा और लेस देन 80 होगा. ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर, तो आंसर क्या होगा. तो देखो 30 टाइम्स 2 किया तो हमें 60 मिला. ओके, अब हमें 4 टाइम्स 2 अभी करने बाकी है क्योंकि हमने 30 को 30 प्लस 4 करते हैं तो 30 टाइम्स 2 किया तो 60 मिला. तो 4 टाइम्स 2 करेंगे सो वी विल गेट 8. ओके, सो 60 प्लस 8 करेंगे इज इक्वल टू 68. ओके, तो हमारा आंसर रहेगा 68. ओके, देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है, बॉक्स मेथड मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट किया है. देखो हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2, ये पूछ रही है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 34 टाइम्स 2. तो ये बोलती है आई नो, मुझे पता है. तो ये कैसे लिखती है, देखो भारती रॉट 34 को उसने इस तरह से ब्रेक किया 30 and 4. ओके, और यहाँ पे 2 बिकॉज 2 टॉफीज दी गई थी इसीलिए. ओके,
अब यहाँ पे देखो, सी 34 इज 30 एंड 4, राइट, यस राइट, ओके। 34 को हम 30 + 4 भी इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट भारती रोट, उसने क्या किया, यहाँ पे 30 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ओके, इस पर्टिकुलर बॉक्स में। सो 2 × 30 = 60, ओके। एंड यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर बॉक्स में उसने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके। सो 2 × 4 = 8, ओके। सो ये बोलती है 30 × 2 = 60 एंड 4 × 2 = 8, ओके। तो ये क्या बोलती है, बट व्हाट इज द आंसर, पर आंसर क्या है इसको अभी पता नहीं चला है, ओके। तो ये पूछती है कि आंसर क्या है, तो ये क्या बोलती है, जस्ट ऐड द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड यू गेट द आंसर, ओके। आप ये जो नंबर आपको मिले हैं बॉक्सेस में उसको जस्ट आप ऐड कर दीजिए, सो यू विल गेट द आंसर, ओके। सो 60 + 8 = 68, ओके। सो 68 टॉफीज इन ऑल, ओके। टोटल 68 टॉफीज बच्चों को दी गई थी, ओके। तो ये क्या बोलती है, वाओ दैट्स स्मार्ट, ओके, ये बहुत स्मार्ट तरीका है, ओके। नाउ लेट्स सी another example. In a picnic, 4 fruits were given to every students, okay. पिकनिक में हर एक बच्चों को 4 fruits दिए गए, ओके। The number of students was 23. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 थे। सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन, ओके। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बच्चों को दी गए होंगे, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पिकनिक आर 23. Fruits given to each students are 4, okay. So total number of fruits is equal to 23 × 4, okay. हम 23 × 4 करेंगे, सो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने फ्रूट्स बच्चों को दिए गए थे, ओके। तो देखो यहाँ पे 23 × 4 मीन्स 23 × 4, ओके। 20 × 4 is 80. So the answer is more than 80 and the answer is also less than 100. कैन यू टेल वाई, आप कह सकते हो ऐसा कैसे, तो यस हम कह सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे हमने किया 20 × 4 is 80, ओके। सो यहाँ पे 23 जो वैल्यू है वो 20 से ज़्यादा है, ओके। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 80 से मोर देन होगा, ओके। और हमारा जो आंसर होगा वो 100 से लेस देन होगा, बिकॉज अगर हम 25 × 4 करते हैं सो वी विल गेट 100, पर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 23 है जो कि 25 से कम है, ओके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो मोर देन 80 होगा और लेस देन 100 होगा, ओके। लेट अस ट्राई इफ वी कैन डू दिस बाय भारतीस मेथड, ओके। भारती ने आगे के एग्जाम्पल में जो मेथड सिखाई थी वही एग्जाम्पल से हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो 23 को इस तरह से ब्रेक किया, 20 + 3, ओके, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देर आर 4 फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स, ओके, इसलिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 के साथ, ओके। सो 20 × 4 = 80 एंड 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 4 = 12, ओके। नाउ एडिंग 80 एंड 12 सो गिव अस 92, ओके। 80 और 12 को हम ऐड करते हैं, सो हमें 92 वैल्यू मिली, ओके। सो 23 × 4 is 92, दैट मीन्स 92 फ्रूट्स बच्चों को दिए गए थे, ओके। नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर टॉपिक, प्रैक्टिस टाइम, ओके। आपने आगे जो बॉक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसको अप्लाई करके आपको ये सारे एग्जाम्पल है वो सॉल्व आउट करने हैं, ओके। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल से वो 2 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं, ओके। तो आपको 2 बॉक्सेस वाइड लेने हैं और 1 बॉक्स हाई लेना है, ओके। आगे जैसे आपने सॉल्व किया बस वैसे ही करना है। अगर आप डिटेल में बॉक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हो तो मैंने बॉक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ओके। तो आप वहां से जाके देख लेना, ओके। तो देखो 22 × 3 करेंगे, सो वी विल गेट 66 आंसर, ओके। 21 × 4 = 84, 11 × 5 = 55, 20 × 4 = 80, 26 × 4 = 104, 25 × 3 = 75, 35 × 3 = 105, okay. 32 × 5 = 160, 43 × 2 = 86, 24 × 2 = 48, okay. 30 × 5 we get 150, 23 × 9 so we get 207, okay. 38 × 2 = 76 answer, okay. 24 × 5 so we get 120 answer, okay. 48 × 4 we get 192 answer. 58 × 2 = 116, okay. इस तरह से
आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे सम स्टोरी एग्जांपल्स आर गिवन। ओके, आपको दिए गए हैं, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आंसर गेस करना है। ओके, एंड उसके बाद कैलकुलेट करना है। ओके, सो अ फ्लावर हैज 5 petals, a bunch of flowers has 13 flowers. Okay, so how many petals are there in the bunch? You can see in this picture also, one flower has 5 petals. Okay, 1 2 3 4 and 5, and this is the bunch of flower. Okay, so a bunch of flower has 13 flowers total. Okay, so हम करेंगे 13 into 5, so we get 65 answer. Okay, so there are 65 petals in the bunch. Okay, the next is a book has 64 pages. Okay, so what will be the total number of pages in 8 such books? So there are 64 pages, so we write here 64, and I see total 8 books hai. Okay, so multiply with 8. Okay, is equal to, we get 512 pages. Okay, so total 512 pages in 8 such books. Okay, the next is students stand in row in the assembly. You can see in this picture also, students stand in a row in the assembly. There are 6 rows of students. Okay, 1 2 3 4 5 6, there are 6 rows of students. Each row has 17 students. Okay, हर एक रो में 17 स्टूडेंट्स खड़े हैं. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सो आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे, देर आर 6 रो, सो हम 6 लिखेंगे, और ईच रो हैज 17 स्टूडेंट्स, सो 17 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 102 आंसर. ओके, सो 102 स्टूडेंट्स आर स्टैंड इन दी असेंबली. ओके, द नेक्स्ट इज a design has three flowers in it. Okay, a piece of cloth has 17 such designs. Okay, आप ये piece of cloth देख रहे हो, उसमें एक डिजाइन में 3 फ्लावर्स हैं. ओके, ऐसे टोटल 17 डिजाइन है. ओके, सो हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लोथ? तो टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लावर होंगे क्लोथ पे? ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे 3 into 17 बिकॉज देर आर 3 फ्लावर्स इन 1 डिजाइन एंड ऐसी 17 डिजाइन से. ओके, सो 17 into 3 करेंगे, सो वी विल गेट 51 फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लोथ्स. ओके, क्लोथ. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी इन 23 डजन? 23 डजन में कितने? ओके, वो हम फाइंड आउट करते हैं. मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय द डजन. ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो डजन में सोल्ड की जाती है, बेची जाती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेंगल्स एंड बनानाज. ओके, आर ऑफन सोल्ड बाय द डजन. बेंगल्स ले लो या बनाना, वो सब डजन में ही लेते हैं. ओके, अगर हम जाते हैं बेंगल शॉप में तो क्या बोलेंगे, हमें 1 डजन बेंगल्स दो या 2 डजन दो या आधा डजन दो. हम इस तरह से बेंगल्स खरीदते हैं. ओके, ऐसे ही अगर हम बनाना लेने जाते हैं तो भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए, 2 डजन बनाना चाहिए, इस तरह से. ओके, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमें 1 किलो बनाना दे दो या 2 किलो बनाना दे दो, इस तरह से हम नहीं बोलते. ओके, वो डजन में ही बिकता है. ओके, तो देखो 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनानास. ओके, अगर आप बोलते हो कि मुझे 1 डजन बनाना दे दो तो उसका मतलब कि आपको 12 बनाना मिलेंगे. ओके, सो 23 डजन बनाना इज, तो अगर 23 डजन बनाना आप लेना चाहते हो तो आपको कितने नंबर ऑफ बनाना मिलेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 23 into 12. ओके, जो आंसर आता है उतने बनाना आपको मिलेंगे. तो देखो अगर हम 23 into 10 करते हैं, सो वी विल गेट 230. ओके, सो द आंसर इज मोर देन 230. ओके, बिकॉज हमें 23 into 12 करना है, लेकिन अभी हमने 23 into 10 किया है. ओके, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो मोर देन 230 रहेगा. ओके, देखो ये क्या बोलती है, हाउ टू फाइंड 23 into 12? कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बोलती है वी कैन डू इट इन दी सेम वे. हमने आगे जैसे किया हम वैसे ही करेंगे. ओके, आगे क्या किया उन्होंने, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन किया है. ओके, अब यहाँ पे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ओके, तो देखो आगे की मेथड ही फॉलो करनी है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 बॉक्सेस वाइड लिए हैं और ऐसे ही 2 बॉक्सेस हाई लिए हैं. ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है इसलिए. ओके, देखो 23 इज 20 and 3. ओके, 23 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, 20 and 3, एंड 12 को 10 and 2 इस तरह से ब्रेक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे 23 इस तरह से लिखा है और 12 को 10 and 2 इस तरह से लिखा है. ओके,
नेक्स्ट भारती रोट 20 into 10. ओके, इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स यहाँ पे 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो वी गेट 200. ओके, सेम वे यहाँ पे 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो वी गेट 30. यहाँ पे 20 into 2. ओके, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 40. एंड यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से वी गेट 6. ओके, वी विल एड द नंबर इन द बॉक्सेस टू गेट द आंसर. ओके, ये बॉक्सेस में जितने भी नंबर है उनको हम ऐड करेंगे. सो वी विल गेट द आंसर. ओके, सो 200 + 40 + 30 + 6. 200 + 40 + 30 + 6. सो वी गेट 276 आंसर. ओके, तो ये क्या बोलते हैं, दैट्स करेक्ट. 23 into 12 = 276. ओके, सो 23 डजन बनाना इज 276 बनाना. अगर आप 23 डजन बनाना खरीदते हो तो आपको 276 बनाना मिलेंगे. ओके, नाउ ट्राई डूइंग 43 into 30. यहाँ पे क्या बोला है, गेस द आंसर फर्स्ट. पहले आप आंसर को गेस करो. तो देखो यहाँ पे 40 into 10 करते हो तो हमारा आंसर 400 से ज्यादा आएगा. ओके, इस तरह से हम गेस लगा सकते हैं. ओके, देखो 43 इज 40 and 3. उसको 43 को 40 and 3 में ब्रेक किया है और 13 को 10 and 3 इस तरह से ब्रेक किया है. ओके, तो देखो यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस हाई लेंगे, वाइड लेंगे और 2 बॉक्सेस हाई लेंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पे भी 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है. ओके, तो देखो 40 को यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि 43 को आप यहाँ लिखो. आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो. ओके, अगर आप 40 और 3 को यहाँ लिखते हो तो ये 10 और 3 को आप यहाँ पे लिखोगे. ओके, सो 40 into 10 = 400. ओके, यहाँ पे 3 into 10 करोगे सो वी गेट 30. ओके, यहाँ पे 40 into 3 = 120. एंड इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स 3 into 3 करेंगे = 9. ओके, now just add the number in the boxes and you will get the answer. Okay, so add 400 + 120 + 30 + 9. So we will get 559 answer. Okay, so 43 into 13 = 559. Okay, so I hope up to this the concept is clear to you. The remaining topics of this chapter we will see in the next part. Okay, that is part number 5th. Okay, and one more thing, you can find the link of all the parts of this chapter in this video description box. Okay, so we will meet very soon with the next video. Till then, bye, take care. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.